So today I will be talking about the genesis and development of स्तूप architecture. जो स्तूप की जो संरचना है, वास्तु संरचना, इसके उद्भव और विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय इतिहास और वास्तुकला के इतिहास में से क्या रोल है स्तूप का और इसका क्या मतलब है। जो जनरली हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म और जो बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर के साथ ये जुड़ा हुआ है स्तूप, ऐसा नहीं है। I will be telling you through my slides with various examples how this particular structure is being present in the other religions also, whether it is Hinduism, Jainism or any other one. So उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आपको पता होगा कि आर्ट आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है आपका यूजीसी में, उसमें बहुत ही अच्छे खासा प्रोपोर्शन आर्कियोलॉजी के अलावा होता है और हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन यदा कदा आ ही जाते हैं इसके बारे में। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है स्तूप आर्किटेक्चर की संरचना और इसके उद्भव और विकास के बारे में। तो जब हम बात करते हैं, when we talk about the genesis as well as the origin, if you have any problem you can interrupt me in between. अगर कोई समस्या हो आप मुझे बीच में रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की हो, any of you. क्या कैंडिडेट्स के वो माइक म्यूट रहते हैं क्या सनत जी? यस सर। क्या कैंडिडेट्स के माइक या वो माइक्रोफोन म्यूट रहते हैं क्या, या दे कैन आस्क ऑन रहता है ना? सर हम ये करते हैं कि आखिरी के आप ऐसा कर सकते हैं या तो कि आखिरी के 15-20 मिनट में। दैट विल बी बेटर, वो बेटर रहेगा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो टुडे जो मैं बात कर रहा हूँ स्तूप के बारे में, तो हम जानते हैं कि जो स्तूप का जो शब्द है, ये जो संरचना है, अगर हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म स्तूप. So this stoop was a hemispherical mound and it was generally made over the remains of, basically the mortal remains of the great man in the Buddhist pantheon or in the Buddhist religion. And Buddha's, we can say that they were different, they were distributed in the different parts of the country during that time in the Buddhist world, where the stupa were constructed over all these remains. So the practice of this constructing the stupa, first of all, it was of the mud over the mortal remains of was prevalent much prior to the existence of Buddha itself. How? I will be giving you the example. मैं उसके बारे में आपको उदाहरण दूंगा. And many times a tree, mostly the peepal tree, it was planted in the midst, that is in the middle of this mound, which was known as the Chhatrayasti or the Chhatrayu. That I will be telling you. And when we talk about our ancient text, that is the Rig Veda, here we can see that the flames rising from the fire altar, they were known as stup. So you can understand this concept of stup was prevalent in the Rigvedic period. So this is a great mystery among all the scholarly world about the origin or the evolution of this particular Buddhist architectural element, that is the stupa. And so it is considered as a mystery how it originated and from where it came into vogue. So ये जो स्तूपा की जो उत्पत्ति है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इसकी जो ओरिजिन की जो कहानी है वह एक रहस्यमयी कहानी है और विद्वानों के लिए ये कौतूहल का विषय आज भी वो बना हुआ है. और when we see about or when we talk about or when we have a glimpse over the text of the Vedic as well as the Buddhist faith, we can find about the mention of this particular term stupa and how it is important for the Buddhist world that all of us know about this one. So when we talk about the definition of this particular stupa, so I told you in the beginning, this is a hemispherical mound
and which was made over the mortal remains of the great man of the Buddhist pantheon. However, when we talk about the other terms associated with this particular word of stup, it was another word was the tope, T-O-P-E. And this word tope, when you will open the English dictionary, you will find the word tope as the meaning for stupa. And this particular word tope was first of all used by the Englishman. His name was Elphinstone. In his account of that is known as the Tope of Manikkayal in the Rawalpindi district in the year 1839. So Elphinstone in 1839, for the first time, he has used this term tope for the stupa. But when we have the information from the Pali text, in the Pali text we find the word thupa, T-H-U-P-A, which is quite similar to the term stupa. And when we find out the meaning of this word thupa, it means the conical heap, a pile or a mound, or a conical or a bell-shaped shrine containing the relic. So this is the meaning of this word thupa. And the scholars, they considered that this word stup has come from this word thupa. And this word stupa or the stup is linked with the Buddhist life, that they were not content to erect the monuments alone. And when we see the sculptural art of the Buddhist world, we find that they have been represented on the stone, and we find them represented on the panels of the stupa monuments also sometimes. On the railing balustrade also. Yeah. सर हिंदी में भी बोल दीजिए सर प्लीज। बोल तो रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके बेटा। जी सर जी। ठीक है ना सर? एक बार स्क्रीन फुल कर दीजिए। अभी जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली हमें पहले बोला था कि इंग्लिश में ही बोलना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश में मैं फिर दोनों को बोलूँ। मैं अभी ये बात कर रहा था कि जो स्तूप वर्ड की उत्पत्ति है, इसके बारे में जो हमको जानकारी वैदिक टेक्स्ट से या पाली टेक्स्ट से कैसे कैसे होती है, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें कि हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए जो शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी में, उसके लिए है टोप। और ये सबसे पहले एक इंग्लिश मैन थे जिनका कि नाम मैंने बताया एलिफिंस्टन थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो एक किताब है टोप ऑफ मानिक्यल, जो कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, उसमें उन्होंने इस शब्द के बारे में उपयोग किया है। और ये जो स्तूप की संरचना है वह बौद्ध धर्म से वो इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि बौद्ध धर्म के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ईंट के बने हुए हों, चाहे वो पत्थर के बने हैं, या जो अलग अलग अवयव हैं स्तूप के, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं स्तूप के। एक अंड का भाग होता है, दूसरा रेलिंग होती है, वेदिका होती है, यष्टि होती है, छत्र यष्टि होता है। इन सबों के ऊपर भी आपको अलंकरण स्तूप के कभी कभी आपको दिखाई पड़ जाते हैं। एंड जो महावस्तु है, दिव्यावदान है या क्रिया संग्रह जो सूत्र है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में हमको बहुत ही इलाबोरेट एक क्रोनोलॉजी, एक क्रम विकास का इन स्तूपों का हमको दिखाई पड़ता है 2nd सेंचुरी BC से ही। और ये जो क्रम है वह क्रमशः 4th सेंचुरी तक ये चलता रहता है, AD तक। सो वी कैन सी दैट from the 2nd century BCE, as per the Buddhist text of Mahavastu, Divyavadan, as well as the Kriya Sangra Sutra, we get the information about the erection of the stupa. जो शिवराम मूर्ति जी हैं, उन्होंने स्तूप के बारे में कहा है, इट इज ए मॉन्यूमेंट फॉर वेनरेशन। वेनरेशन मतलब
एक मतलब जो है यह पूजनीय मतलब एक संरचना है, पूजने योग्य संरचना है, जिसके बारे में एम शिवराम मूर्ति ने अपनी किताब में कहा है। एंड इसके अलावा केवल एक ये पूजा का, एक वंदना का स्थल ही नहीं है। हम जानते हैं कि जो स्तूप हैं इसके कई प्रकार भी होते हैं, जिसके बारे में हम आपको बात करेंगे, जिसमें कि शारीरिक स्तूप होते हैं, पारभौगिक स्तूप होते हैं, उद्देशिक होते हैं और एक भोटिव स्तूप भी होता है। ये 4 प्रकार के मतलब जो है सो प्रकार पाए जाते हैं स्तूप के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में जो है सो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैसे कि अवदान सुक्त है, इसके अलावा महावदान है जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, और एक है स्तूपावदान, ये भी एक ग्रंथ है जो कि बहुत ही इलॉबरेट रूप से, बृहद रूप से हमको स्तूप को बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे जो अहम बात है, एक जो जैन ग्रंथ है, आप लोग इसको याद रखेंगे, जिसका कि नाम है राय पसेनिया। ये जो ग्रंथ है राय पसेनिया सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द प्रोसेस फॉर द इरेक्शन ऑफ different kind of stupa, basically the commemorative stupa during that time. And और ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में जो स्तूप बनाए गए हैं, this was not only for the great person or the great leaders, but it was also meant for the common man or the common mass. जब हम बात करते हैं, when we talk about the writings of Alexander Cunningham, who is also considered as the father of Indian archaeology, आप सभी जानते हैं, जो कि पहले फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने अपनी किताब में, इसके अलावा जो फ्यूरर हैं, मिसे हैं, फॉचे हैं, ये सभी जो पुरातत्वविद हुए हैं, दे हैव ऑल्सो स्टडीड ए लॉट अबाउट द स्तूपा ऑफ सांची, जो कि आप सभी जानते हैं कि यह एक विश्वदाय स्मारक है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। कल ही हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया है 18 अप्रैल को। और ये जो स्तूपा है वहां के सांची के बारे में अलेक्जेंडर कनिंगम या मैसे या फूशे ने, इन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है, और उन्होंने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है कि ऐसे कौन कौन से कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी बृहद जानकारी हमने आपको दी। अब हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या होता है इस टर्म का। जो स्तूप जो शब्द है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड स्तूप। सो इन संस्कृत, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड स्तूप, इन संस्कृत इट इज नोन एज द हीप और अ पाइल अप। एक मतलब जो ऊंचा जो स्थान है, जो माउंट तरह जो होता है, जिसको क्या कहें, पुआल की अगर ढेर कहें अगर अपनी भाषा में हम लोग, उसकी तरह की एक संरचना होती है। संस्कृत में और भी जो इसके मीनिंग नजर आते हैं वो है बंच ऑफ द वूल और द रेज्ड लॉक ऑफ द हेयर। आपने देखा होगा कि जो औरतें जो हैं पीछे जो अपना बन बनाती हैं, उसका जो शेप अगर आपने देखा होगा, तो इसकी भी तुलना संस्कृत टेक्स्ट में अगर मीनिंग लेते हैं हम स्तूप से, तो उससे इसका सामंजस्य किया गया है। इन सम टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट, we also come across the meaning of this term stoop as the four part of the head। ये जो सामने का जो फोर पार्ट है, इससे भी इसकी तुलना की गई स्तूप को। and sometime the stupa means to praise or to worship। so you can see here there are different meanings of this particular word stoop, and sometime it is also known as the tree's stem। जो तना का जो भाग होता है वृक्ष का, इसको भी जो है सो हम स्तूप कहते हैं। ये संस्कृत में है। When we talk about the various other names in different countries of the world, स्तूपा के लिए जो विभिन्न अन्य देशों में जो शब्द जो हमको दिखाई पड़ते हैं या हम जानते हैं, उसमें जो चैत्य शब्द है वह यूज होता है स्तूप के लिए नेपाल में। चेतीय यूज होता है पाली, चेतीय थापो ये यूज होता है पाली मतलब जो है सो टेक्स्ट में। दगबा, ये आपको श्रीलंका के क्षेत्र में दगबा कहते हैं स्तूप को। धातु गर्भ कहते हैं संस्कृत में। चेदी कहते हैं थाई लैंग्वेज में इसको। चंडी कहते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में। जो हम लोग स्तूप बोलते हैं इसको इंडोनेशिया मलेशिया में चंडी कहा जाता है।
तिब्बत में और लद्दाख में इसको चोर्तेन कहा जाता है, और चेधे कहा जाता है कंबोडिया में। ता जो चाइनीज जो शब्द है चीन में जो स्तूप के लिए शब्द यूज होता है वह है ता। कोरिया में इसको टाप कहते हैं, थाप कहते हैं वियतनाम में, सोतावा कहते हैं जापान में, जेदी बोलते हैं म्यांमार में, और पेगोडा आप जानते हैं कि जो अन्य जो साउथ ईस्ट कंट्री हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहां पे इसको है पेगोडा की संज्ञा दी जाती है स्तूप को। इज इट क्लियर? आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे इस स्लाइड को, ठीक है। और अगर जो अलग अलग जो इसके समानार्थक जो शब्द हमको दिखाई पड़ते हैं अन्य भाषाओं में, संस्कृत में चैत्या या धातुगर्भ जो अभी मैंने आपको बताया, तिब्बतन में चोर्तन, सिंगलीज में दगबा, इंग्लिश में तोप, और बर्मीज में इसको पेगोडा कहा जाता है। इसके बाद अब बात आती है कि इसका इतिहास क्या है, इस स्तूप का, how it came into the picture, this particular structure. So we have to study a little bit, we have to know a little bit about the history of this stupa architecture. So this stupa is derived from the pre-Buddhist burial mound. जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले ही आपको जब शुरुआत की मैंने आपको बताया था कि ये केवल ये शब्द जो बुद्धिस्ट जो आपको जो बौद्ध धर्म है वह इसके साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है, बट इट इज ए प्री बुद्धिस्ट टर्म। सो इंडीड वास्तव में ये जो एक कस्टम है या एक जो परंपरा है, यह केवल भारत में ही पिकुलियर नहीं था, बट इट वाज ओनली एन एडेप्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड फेनोमेना, जो कि दूसरे विश्व के अन्य जगहों पे भी ये जो प्रक्रिया थी उससे जो है इसको लिया गया है। और इसके उदाहरण के स्वरूप व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉन्ज एज, जिसको कांस्य युग कहते हैं, जिसका कि काल आपके सामने स्लाइड पे है, आप देख सकते हैं, तो वहां से ही हमको जो है इस शब्द की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होने लगती है, जिसमें कि इसको ट्यूमुलाई कहा गया है या ट्यूमुलस कहा गया है, एंड इट वाज सिनोनिमस और इट वाज यूज्ड फॉर द बरियल माउंड्स वेयर द डेड दे वेयर जनरली केप्ट along with his मतलब जैसे belongings or along with the relic objects, and that is why it is known as the stupa, and it has come from the Bronze Age period itself. So when we talk about this concept of the stupa, we also find the example of the stupa architecture in the Indus Valley civilization also. From the excavation of the site of Dholavira by Dr. R.S. Bestser, he has found out the remains of the Sar Rath Chakra Siddhi, and it has been found from there. You can see here, this is the example of that one. Again, we also come across by the Fogel. He has found out and he has written in his travel accounts about the stupa mound which has been found from the site of Mohenjo-daro. You can see it here. Again, we have got this stupa architecture from the excavation of the Kushan period site of Sanghol. You can see here, this is the Samchatush Chakra Siddhi. You can see here, it was the pattern of the stupa of the Kushan period. And here, you can see here, the similar kind of structures have been found from the excavations at Nagarjunikonda, and it is a Rath Chakra Siddhi pattern. You can see here, ये जो सकट का जो धुरी होता है, आपके जो बैल का जो पहिया जो होता है बैलगाड़ी की, उसके समान जैसे इसके जैसा परिकल्पना या परियोजना आप देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग ग्राउंड प्लान कहते हैं. यू कैन सी इट हियर. यू कैन सी हियर, this is the plan of the Jain stupa from the Kankali Tila from Mathura. It has been found from the excavation and it belongs to the Shunga period. So आप एक क्रम देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से या उससे पहले ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की हमने बात की, वहां से लेकर के और कैसे ये हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक काल में भी इसकी संरचना की हमको जानकारी प्राप्त हो रही है. यू कैन सी हियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट मेगालिथिक कल्चर, जो महाश्म की एक जो समाधि परंपरा है हमारे भारतीय पुरातत्व में, पुरातत्व के इतिहास में आप जानते हैं कि कई प्रकार की समाधियां होती हैं, जिसमें कि आपको या तो पढ़ाया गया होगा या आप पढ़ेंगे इसके बारे में,
जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेगालिथ्स जो होते हैं, उसमें से एक मेगालिथ जो होता है जिसको कुंडन कुडाईकल कहा जाता है, जो केरल के क्षेत्र में पाया जाता है. इट इज फाउंड फ्रॉम द एरियाज ऑफ द केरला, and that has given the resemblance of this stupa architecture. So this megalithic burial tombs, they have the similarity with the stupa, and such type of these structures have been found from the sites of the Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan. So now I'm talking about the archaeological evidence of this concept of the stupa structure, or the evolution of the stupa in the archaeological perspective. So I told you that from the areas of this Kerala, there is a type of the megalithic burial, Kundan Kudaikal, that is meaning by, this is a Malayalam term, and it means the handless umbrella stone or the hood stone. You can see here in the next picture, you can see this is the picture of the Kundan Kudaikal. So this is also found from the areas of Kerala, and here it is without any, you can see without any handle. So that is why it is known as handleless umbrella or the Kundan Kudaikal. So you can see here, this is the picture. And this tomb of, this was the scenario, this was the picture in India. ये भारत की आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, और भारत के बाहर अगर हम बात करते हैं प्री क्रिश्चियन सेंचुरी में, तो वहां पे भी आपको इस प्रकार के जो टोम्ब है सेल्टिक प्रिंसेस के आपको दिखाई पड़ जाते हैं 4th 5th century AD में. You can see here. So this is another example of this megalithic burial chamber with the mushroom cap here. It has been found from the areas of the South India, and the date of this particular structure is of 1000 BCE. So now I will be elaborating more about the origin and the evolution on the basis of the literature. जो साहित्यिक स्रोत के आधार पे हमने आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल स्रोत दिखाए. साहित्यिक स्रोत के बारे में अब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, और सबसे पहले जो शब्द जो दिखाई पड़ता है उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा भी बताया था. बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बहुत सारे टेक्स्ट के नाम मैंने आपको बताए, कुछ किताबों के जैन टेक्स्ट के नाम बताए. और अगर हम बात करते हैं वैदिक टेक्स्ट की, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वैदिक लिटरेचर, सो दिस वर्ड अकर्स इन द वैदिक ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तरीय संहिता, वासनेय संहिता, as well as the Satpat Brahman. And this word stupa is said to have been derived from the Sanskrit root stu. Stu meaning to worship or to praise. Stuti, उस शब्द से ये आया है स्तूपा. एंड अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, लिटरली इसका ट्रांसलेट करते हैं स्तूपा को, तो उसका मीनिंग होता है नॉट और द टफ ऑफ द हेयर. और ऋग्वेद जो टेक्स्ट है वहां पे स्तूप का मतलब होता है जो वृक्ष का तना है उसको कहा गया है स्तूप. और समटाइम्स इन अदर रेफरेंसेस in Rigved we find about this word of you can see here heap or to pile up. ये भी कभी कभी यूज आपको ऋग्वेद के संदर्भ में स्तूप के लिए दिखाई पड़ता है. ऋग्वेद में एक जो मंत्र है, जो एक श्लोक है, आप देख सकते हैं वहां पे आपके सामने लिखा हुआ है, अबुधिय राजा वरुणो वानासो धर्व स्तूपम ददाते पोद शाखा. So, ये आपको जो उसके बारे में जानकारी मिलती है. और कभी कभी ये जो स्तूप है इसका सामंजस्य जो है शमशान से भी किया जाता है, और शमशान का मीनिंग आप सबों को पता है कि दिस इज ए बरियल ग्राउंड. जो शमशान होता है वो बरियल ग्राउंड होता है. इट इज रेफर्ड टू इन द अथर्ववेद और लेटर ऑन इट इन द संहितास. तो सतपथ ब्राह्मण जो है वहां पे जो है सो अगर हम देखते हैं, it mentions about the raising or a mound or a burial ground after the cremation. तो सतपथ ब्राह्मण में भी इस शब्द के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है. You can see here सतपथ ब्राह्मण में, जिसको कि आपको यहाँ पे शमशान के साथ इसका सामंजस्य किया गया है. और इसके बाद जो है सो आपको जो चामू जो है इसको कहा गया है
जो अगर दूसरे माउंट के रूप में बात करते हैं, एक सेमी स्फेरिकल बॉल की तरह, बॉल मतलब कटोरा, जो भिक्षा पात्र है, इससे भी इसका सामंजस्य किया गया है। So in all these ancient texts, it is clearly stated that the stones they are used instead of the square bricks in case of the non-fire worshipper. So अब देखिए यहाँ पे एक बात और आ गई यहाँ पे कि स्तूप को बनाने के लिए हमको स्टोन के अलावा ब्रिक का भी उपयोग होता है, जबकि पहले जो स्तूप बनते थे वो सभी मिट्टी के या मृतिका के बने हुए होते थे। ठीक है। और ये जो परिणाम जो आपको परिनंदन दाल है जो कहा जाता है, जिसको कि राउंड एंड द डोम शेप्ड जो टूम्ब है, इट वाज इरेक्टेड बाय द प्राच्यास व्हिच वाज स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड इन द सतपथ ब्राह्मण। जो इसकी पहचान जो की गई है, इसके बारे में बताया गया है, इसको जो है सो बनाने का काज जो है सो वो जो राउंड या डोम शेप में किया जाता था, जो कि बाद के लोगों ने इसको नकारा है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं सतपथ ब्राह्मण में ही आगे की बात करेंगे। यू कैन सी हियर दिस इज द लाइन ड्राइंग ऑफ द वैदिक सिद्धि। और वैदिक सिद्धि जो पहले बनाया जाता था, वो जो मैंने आपको भी बात की, जो सतपथ ब्राह्मण की जो क्वाड्रिलेटरल या जो चार मतलब जो है सो आप देखते हैं चतुष वाले उसमें शेप में, यू कैन सी हियर दिस इज। और उसके बीच में जो एक डंडा करा हुआ है, जो स्तंभ करा हुआ है, जिसको कि चैत्य यूप कहा जाता है, इसके बारे में अभी हम आगे और बात करेंगे। और कभी कभी इस बीच में जो है एक वृक्ष भी रोपा जाता था, जनरली पीपल का वृक्ष। और अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं, उसमें हम लोग तुलसी का पौधा बीच में जो है सो लगा देते हैं उसमें। ठीक है। यू कैन सी हियर दिस इज द लाइन ड्राइंग अगेन शोइंग। सो अगर हम बात करते हैं इस सिद्धि की, इस सिद्धि का जो उद्भव हुआ है वह चैत्य का ओरिजिन वो वैदिक चैत्य से वो कैसे अलग है और कैसे उससे हुआ है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि वैदिक जो चित्त है उससे जो है इस स्तूप का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस वर्शिप ऑफ द चैत्य वाज इन्वॉल्व लॉन्ग बिफोर द लाइफ ऑफ द बुद्धा, जो कि मैंने आपको कहा। एंड दिस टर्म वाज नॉट ओनली डिनोटिंग फॉर द आर्किटेक्चर but also it was used for the sacred trees, memorial stones, images. So ये जो टर्म है चैत्य, इसका उपयोग इन सब के लिए भी किया जाता था, जिसकी पहचान या जिसके बारे में जानकारी हमको ऋग्वैदिक ग्रंथ में दिखाई पड़ती है। और इसके बारे में जो हम जानते हैं कि एनीथिंग व्हिच इज वर्शिप इज कॉल्ड ए चैत्य। जिसको भी हम पूजा कर रहे हैं उसको चैत्य कहते हैं। दैट इज द चैत्य युग, चैत्य वृक्ष, चैत्य पाशाद और चतुश्चैत्य। ये सभी का जो मीनिंग है वो सभी जैसे कमेमोरेशन के लिए या पूजा के लिए या वंदना के लिए ही यूज किया गया है, जो ऋग्वैदिक टेक्स्ट में हमको क्लियरली दिखाई पड़ता है। एंड दिस चैत्य कल्ट, वी नो दैट दिस वाज ए पर्टिकुलर पॉपुलर कल्ट व्हिच वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्ध आल्सो। और जो दिग्निकाय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है सो महात्मा बुद्ध ने जब उन्होंने उदयन जो शहर जब उसको विजिट किया है, तो वहां पे उन्होंने इसके बारे में कहा है कि यहाँ पे जो है पहले से ये कॉन्सेप्ट प्रिवलेंट है, ये कल्ट पहले से प्रिवलेंट है। ये इवन जो है सो लॉर्ड बुद्धा ने अपने जीवन काल में इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है। और दिस वर्ड चैत्य इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चित्य and this word occurred in the Atar Samhita. So sometimes मैं क्यों इसके बारे में बता रहा हूं आपको कि ताकि आपको क्लियर रहे इसको कि चैत्य की पहचान और चैत्य की सामंजस्य जो है वह स्तूप से की जाती है। और चैत्य का मतलब मैंने आपको बताया पूजा का स्थल, और कौन कौन से प्रकार के स्थल हैं वो मैंने आपको बताया। और इसका जो है सो वो डिराइव जो किया गया है, जो वैदिक वर्ड है चित्य, उससे इसको जो है सो डिराइव किया गया है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बारे में अगर जो है सो अगर आप देखते हैं, अगर इसके आर्ट के कला के रूप में, अगर इसके उदाहरण के रूप में आप देखते हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसका निरूपण आपको जो मैंने आपको बताया, सांची का ये जो रेलिंग है उसके ऊपर भी आपको दिखाई पड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुली दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा हैज बीन जस्ट कार्व्ड हियर, कैन सी हियर। और ये देखिए ये जो यूप है इसका मेंशन जो है सो आपको जो इरेक्ट किया जाता था, ये चैत्य यज्ञ के जब होता था वैदिक के काल में,
वहां पे किया जाता था। और इसीलिए कहा जाता है क्यों वहां किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं यज्ञ में जो भी चीजें यूज हो रही है वो सभी जो है सेक्रेट है, वो जैसे बहुत ज्यादा जो है ये है, ठीक है। और जो चैत्य यज्ञ है इट वाज बेसिकली यूज्ड फॉर द सैक्रिफिशियल पर्पस ऑफ द एनिमल्स, वहां पे जो है पशुओं की बलि दी जाती थी, वहां पे इसको सामंजस्य किया गया है। और आप जानते हैं कि इसका जो सामंजस्य या इसके बारे में एग्जाम्पल हमको महाभारत में भी मिलता है, जहाँ पे महाभारत में जो चैत्य युग जो है वहां पे मिलता है, वहां इसका उदाहरण। और जो ट्रेडिशन ऑफ दिस स्तूपा जो है विद द पिलर्स और विद यूप, इसको मैं यूप कह रहा हूँ, may be inspired by the Yagya Chait or the Yup of the later period. So this may be regarded for as the origin of the commemoration of the Chaitya cult in India at that time. Next देखिए, आपको जो दूसरा डेरिवेशन है कि ये जो स्तूप वर्ड का जो डेरिवेशन है कि कैसे जैसे चैत्य के बारे में मैंने अभी बताया, दूसरा इसका डेरिवेशन जो होता है वह है आपको सिति शब्द से। और सिति का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ये फायर अल्टर, क्षिति जिसको कहते हैं। आपने कई प्रकार के जैसे यज्ञ के जो है सो हवन के बारे में, जो प्रकार के ये जो हवन कुंड होते हैं, जैसे शयन क्षिति, मतलब क्या होता है, क्षिति मतलब यहाँ पे हो गया जो फायर अल्टर, उससे भी इसका जो है सो पहचान किया जाता है। एंड दे कैन बी इंटरप्रिटेड, दिस स्तूपास दे कैन बी इंटरप्रिटेड एज द फ्यूनरल फायर और द अग्नि। सो जो अग्नि का जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, इससे भी इसकी पहचान स्तूपा से की जाती है। एंड समटाइम्स द सीता इज एक्सटेंडेड, चिता जिसको हम लोग कहते हैं, चिता का मतलब हम लोग स्मशान से भी अपना सामंजस्य लगाते हैं। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, सारे जो चीज हैं, वो सारे स्तूपा को ही डिराइव करते हैं या डिनोट करते हैं। सो दिस सीता और चैत्य इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द संहितास, in the Brahmanas, but the first time Chaitya in the meaning of the Yagya Sthan is mentioned only in the, you can see here as the Aswalayan Griha Sutra। वहां पे जो है इसकी सामंजस्य जो है शमशान से नहीं करके इसकी सामंजस्य जो किया गया है यज्ञ स्थान से किया गया है, चिता शब्द का जो है उपयोग, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है ऐसा कहा जाता है ये बहुत पहले लिखा गया होगा, एग्जैक्ट डेट इसके बारे में हमको अभी पता नहीं है। अर्थशास्त्र में भी आपको जो है जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा, वहां पर भी आपको जो है चैत्य स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें इसकी सामंजस्य या इसकी पहचान जो है बरियल ग्राउंड, जहाँ पे कि डेड बॉडी को, मृत बॉडी को मतलब जो जलाने का या दफनाने का जो काम किया जाता था उसके रूप में जैसे इसकी पहचान की गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे पितृ मेध सूक्त है, उसमें भी ऐसा वर्णन मिलता है कि आफ्टर द क्रिमेशन ऑफ द डेड, एक मृत्यु होने के उपरांत तीसरे दिन में, ठीक है, उसको बोन्स को कलेक्ट किया जाता था, और जो एक पूर्ण चंद्रमा का जो दिन होता है उस दिन जो है, या जो नया जो पहला जो दिन होता है चंद्रमा के निकलने का, वहां पे बाद में श्राद्ध सेरेमनी किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस पितृ मेधा सूक्त में दी गई है। तो मतलब ये है कि ये जो चिता है या सिति है, इसकी पहचान भी फिर स्तूप से की गई है। सो दिस ट्रेडिशन ऑफ burying the remains of the dead later on the cremation might have inspired the building of this Buddhist stupa। So इतना जो सार है, जो निचोड़ है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था तभी से, ये कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक चाहे वो चिता हो चाहे जो चैत्य हो, वहां से जो है ये जो स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट स्तूपा का, वहां से इसका जो है सो डिराइव किया गया होगा, या वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया होगा। अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिटी एज वेल एज द बुद्धिस्ट स्तूपा। दोनों में मेन अंतर क्या है, अगर हम बात करते हैं कि हमने वो कॉन्सेप्ट वहां से लिया है, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो दिस वैदिक सिटी वाज द शॉर्टर देन द बुद्धिस्ट स्तूपा। जो वैदिक सिटी होती थी उसका जो निर्माण होता था बहुत मतलब लघु पैमाने पे, बहुत छोटे आकार में वो किया जाता था, जबकि जो बुद्धिस्ट स्तूपा का निर्माण जो है आप जानते हैं कितना बड़ा डायमेंशन हुआ है। जो पहले का जो मौर्य सम्राट अशोक ने जो बनाया सांची में, जो पहले की मड का था, बाद में उसको इनलार्ज किया गया, और उसके इनलार्ज को कैसे डबल साइज किया गया है,
आप इसके बारे में जानते हैं या आपको इसके बारे में बताया जाएगा जब हम लोग अलग अलग स्तूप के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। और जो वैदिक सिद्धि होती है उसमें कोई बेस नहीं होता है, कोई उसमें आधार नहीं होता है, जबकि बुद्धिस्ट स्तूपा का जो है आप जानते हैं कि उसका एक बेस होता है जिसको हम लोग वेदी कहते हैं या वेदिका कहते हैं। पहले वो बेस बनाया जाता है, उसके बाद जो है वो हेमिस्फेरिकल जो अंड शेप जो दिया जाता है, और उसके बाद चारों तरफ उसकी वेदिका बनाई जाती है, रेलिंग लगाया जाता है उसमें, और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। जब उत्तर भारत के हम स्तूपों की बात करते हैं तो उसको आपको अलग अलग दिशाओं में, अगर सांची की बात करते हैं महास्तूपा की, स्तूपा नंबर 1 की, वहां पे हमको 4 तोरण द्वार दिखाई पड़ते हैं। स्तूपा नंबर 2 में हमको कोई तोरण द्वार नहीं है, और स्तूपा नंबर 3 में आपको एक तोरण द्वार दिखाई पड़ता है सांची में, जो कि बाद के शासकों ने, बाद के काल के राजाओं ने ये बनाया है। तो ये जो है सो आपको ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो आपको मतलब दिखाई पड़ता है। जो बुद्धिस्ट स्तूपा होता है वो मड का बना होता था पहले पीरियड में, जबकि वैदिक सिद्धि जो होती थी आप जानते हैं ब्रिक्स से बनाए जाते थे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो शमशान सिद्धि जो होता है उसमें जो हम प्रदक्षिणा लेते हैं वह एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि आपको बुद्धिस्ट स्तूपा में जब भी प्रदक्षिणा लिया जाता है तो वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये कुछ मूलभूत दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में कहाँ से हमको जैसे बुद्धिस्ट मतलब जैसे लिटरेचर में स्तूप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये जो पाली टेक्स्ट है आपको महापरिनिर्वाण सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वहां से हमको जानकारी प्राप्त होती है इसके बारे में। जातक जो है सो वो बहुत महाकपि जातक है, सुजाता जातक है, बाह्य शुद्ध जातक है, इन सभी जातकों में हमको जो है सो स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जातक के बारे में जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है, जानकारी तो प्राप्त होती है संरचना के बारे में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है सो डिटेल कैसे बनाए जाते थे, किस प्रकार के होते थे, क्या आकार होता था, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रकाश इन मतलब जातक कथाओं से हमको नहीं मतलब जो है सो डिस्क्राइब होता है। ठीक है, केवल सुजाता जातक और जो आपको जो बाह्य शुद्ध जातक है उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि जो मिट्टी के जो ढेर के ऊपर जो है सो ये स्तूप बनाए जाते थे, ये जातक कथा में जानकारी मिलती है। और इस बात से हम ये मतलब इन्फरेंस निकाल सकते हैं, वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट प्रायर टू द अशोका मोस्ट ऑफ द स्तूपा वेयर मेड अप ऑफ द क्ले। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप कभी मौका मिले आप सबों को तो अगर आपने पढ़ा होगा कि जो स्तूपा है वैशाली में, वहां पे आपको जो स्तूप है एक वो मड का स्तूप है जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उसको संरक्षण किया हुआ है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो स्तूप थे आपके सांची के हों चाहे बारूद के हों, वो सभी जो है वो मिट्टी के ही बने हुए थे। ठीक है, उसके अलावा जो है सो जो कुछ जो चाइनीज ट्रेवलर चाहे वो फाक्सियन हो चाहे वेंसांग हो या ज्वेंजांग हो, जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने ट्रेवल अकाउंट्स में इन स्तूपों के बारे में बहुत बृहद रूप में जो है सो लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कि कैसे हमको स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे महात्मा बुद्ध से पहले मतलब स्तूप बनाए जाते थे, तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है आप जो कनक जो एक इंस्क्रिप्शन है आप निगाली सागर का, वहां आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप द 14 years आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ द किंग प्रियदर्शी और प्रियदर्शी which is the beloved of the gods, he enlarged the stupa enshrining the relics of the 24th Buddha, which was the Kanak Muni, to double its size. And 20 years after his coronation, he visited the spot in person, offered the worship at the place, and caused this stone pillar to be erected. So ये इंस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है कि जब सम्राट अशोक शासक बने, उन्होंने अपने शासन के 14वें शासन काल में यहाँ का जो कनक मुनि के याद में जो स्तूपा था वहाँ का जो था उसको उन्होंने बनवाया था। और उसके बाद जो 20वें साल में पुनः वो यहाँ पे आकर के उन्होंने इस साइज को जो है सो वो वहाँ पे एक पिलर का मतलब जो है इरेक्ट करवाया था। ये पूरा लिखा उन्होंने, साइज को डबल करवाया था 14वें शासन काल में। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्तूप उस जगह पे पहले से मतलब जो है वो विद्यमान था। सो अगर हम
अदर जो टेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तिब्बतन वर्षन के टेक्स्ट हैं, वहां पर भी हमको जो है सो बहुत सारे उदाहरण जो है सो हमको दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये जानकारी प्राप्त होती है। फ्रॉम दैट वी कैन इन्फर दैट द स्तूपा स्ट्रक्चर एक्टिविटी वाज ऑलरेडी प्रिवेलेंट प्रायर टू द बर्थ ऑफ द बुद्धा, जिसमें कि अनाथ पिंडक ने, ऐसा कहा जाता है कि बिल्ट किया था स्तूपा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा। आप सभी जानते हैं जैतवन वाली जो कहानी है कि राजकुमार से कैसे उन्होंने जमीन खरीदा है जैतवन उद्यान को, और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी, उस उद्यान में पूरा बिछा दिया गया था स्वर्ण मुद्रा को, क्योंकि वो जो उसका जो मालिक था अनाथ पिंडक, जो बहुत बड़ा भक्त था महात्मा बुद्ध का, और जिससे वो लेना चाहता था राजकुमार से, जिसका जैतवन जो उद्यान था वो देने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने जैतवन के जो राजकुमार है उसने ये सोचा कि मैं इसको ऐसी चीज मांगू कि वो दे ना पाए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इस उद्यान के कोने कोने को स्वर्ण मुद्राओं से भर दोगे तो मैं तुमको ये उद्यान तुमको दे दूंगा। तो अनाथ पिंडक चूंकि बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अपने जीवन की जितनी पूंजी है, जितनी कमाई है, पूरा उन्होंने जैसे लगा दिया और पूरे उस उद्यान को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया था। और उसके बाद उस जैतवन जो है उद्यान को खरीद लिया था, और वहां पे एक स्तूपा जो है सो महात्मा बुद्ध के लाइफ टाइम में ही अनाथ पिंडक ने बनाया था, जो बौद्ध धर्म के किसी अनुयायी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध से पहले भी वहां पे स्तूप जो है बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पूरी कहानी है महात्मा बुद्ध और आनंद के बीच में, जो वार्तालाप होता है। आनंद पूछते हैं, आनंद आप जानते हैं कि वो उनके चचेरे भाई भी थे महात्मा बुद्ध के, और महात्मा बुद्ध के अनन्य भक्तों में से वो एक थे, और अनन्य मतलब उनके मतलब सहचरों में से एक थे, जिनको कि महात्मा बुद्ध बहुत ही मतलब प्रिय थे महात्मा बुद्ध के। तो एक बार वार्तालाप हुआ है जहाँ पे आनंद ने उनसे पूछा है कि ये बताइए कि आपके मरने के बाद आपके जैसो कैसे आपको दफनाया जाए, या कैसे आपका जैसा अंतिम संस्कार किया जाए। तो महात्मा बुद्ध ने उनको कहा है कि जैसे एक चक्रवर्ती राजा का होता है वैसे ही किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा आपकी समाधि कहाँ बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जो नगर के चौराहे पर, जहाँ की चारों दिशाओं से लोग उसको देख सकें, श्रद्धा की दृष्टि से देख सकें। ये पूरा वार्तालाप है आनंद और महात्मा बुद्ध के बीच में कि वो स्तूप कैसे बनाने चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए, कितना बड़ा बनाना चाहिए, पूरी बात को लेकर के चर्चा होती है, और पूरी जैसा आपको ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, और इसके उदाहरण जो है सो आपको ये देखिए, मैंने आपको कहा ये जो है जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में या कला के रूप में भी आपको इसके उदाहरण दिखाई पड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है कैसे स्तूपा का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चेंज होता है, इसके बारे में भी जो है सो बहुत ज्यादा हम बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे ये जो स्तूप होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 4 प्रकार मुख्यतः बताए गए हैं इसके। एक शारीरिक स्तूप है, अनदर वन इज द पारभौगिक, उद्देशिक एज वेल एज द भौतिक। शारीरिक स्तूप क्या होता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके ऊपर जो बनाए गए हैं वो आपको जो है सो दिखाई पड़ते हैं, वो शारीरिक स्तूप के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, और शारीरिक स्तूप जो है सो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ बनाए गए थे। जब महात्मा बुद्ध की का महापरिनिर्वाण हुआ है कुशीनगर में, वहां पे उनके अस्थि को लेकर के काफी लड़ाई हुई है, जिसका कि चित्रण आपको सांची के तोरण में भी दिखाई पड़ता है कि वो कैसे लड़ाई हुई है उस अस्थि को लेकर के। फिर उस अस्थि को कैसे 8 भागों में बांटा गया है, और ये जो बांटने का काम था, जो मथुरा के एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था द्रोण, द्रोण ने जो है सो उसको 8 भागों में बांटा है, जिसका कला में भी निरूपण मिलता है, हमको जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो 8 भाग थे आप सभी जानते हैं कि राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्रान और पावा, कुशीनगर और वैदिक, यहाँ के जितने भी गणराज्य के लोग थे उन सबों को जैसे 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और उसके बाद ऐसा कहा जाता जब उन्होंने बांट दिया था, इसके बाद जो है सो लास्ट में जैसे मौर्य जो पिपली वन के थे वो भी वहां पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं हमें भी कुछ भाग मिलना चाहिए। तो उनको भी जो है सो 2 भाग जो है सो दिया गया था, और उसके बाद जो है उन्होंने भी जो स्तूपा बनाए हैं पिपली वन में, 2 स्तूप बनाए हैं वहां पे। तो टोटल उस समय जब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 10 स्तूप बने हैं, 8 जो है सो गणराज्यों के द्वारा और 2 जो है सो मौर्यों के द्वारा। ये टोटल 10 स्तूप उस समय बनाए गए हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं।
ये देखिए, ये महापरिनिर्वाण का दृश्य है, जो अगर आप जाएंगे कोलकाता म्यूजियम में, ये वहाँ का फोटो है, वहां से लिया गया है संग्रहालय से। और ये देखिए कि जब उनकी मृत्यु के उपरांत उनका कैसे दाह संस्कार किया गया है, उनके बॉडी को कैसे मतलब रैप किया गया है, पहले सिल्क क्लॉथ में, उसमें, उसके बाद कॉटन से रैप किया गया है, फिर उसके बाद फिर कॉटन से रैप किया गया है, फिर सिल्क से रैप किया गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 500 लेयर्स में, सक्सेसिव लेयर्स में जो है सो आपको डिफरेंटली जो कॉटन और सिल्क इसमें रैप किया गया था उनके बॉडी को। और उसके बाद जो है उनको फिर जो है सो फायर पे, मतलब जैसे अग्नि किया गया था, क्रिमेशन किया गया था। आप देख सकते हैं ये कला में इनका जैसे वो चित्रण हमको दिखाई पड़ता है। और ये जो कैसे लड़ाई जो हुई है उस रेलिक्स के लिए, जिसके लिए मैं अभी बात कर रहा था, इसका भी चित्रण या निरूपण यू कैन इजीली सी इन दिस पर्टिकुलर दिस आर्किट्रेव ऑफ सांची। यहाँ पे देखिए, और ये द्रोण ऋषि कैसे 8 भागों में जो है बुद्ध के रेलिक को कैसे वो बांट रहे हैं, ये आप देख सकते हैं अलग अलग भागों में। ठीक है, और ये किन किन लोगों को मिला, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये आपको अजात शत्रु को भी मिला, राजगिरी का। उसके बाद कपिल वस्तु के लोग थे, अलकप के भूलिये थे, कुशीनगर के मल्ल थे, और पावा के मल्ल थे, वैशाली के लिच्छवी लोग थे, पोलिये थे रामग्राम के, और इसके अलावा ब्राह्मण थे वेदत्रिप द्वीप के। इन सबों को जैसे 8 भागों में बांट करके वो किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में जो सम्राट अशोक ने इसमें से किसी एक स्तूप को जो है सो किसी को खुलवाया होगा, उन्होंने खोद करके उसमें से रेलिक को निकाला था। और टोटल जैसे 84,000 जैसो ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासन काल में स्तूप बनवाए थे। लेकिन ये थोड़ा सा जो है सो ये ज्यादा संख्या दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। स्तूप के 84,000 तो है नहीं, तो शायद इसमें जो संख्या है मेरे मुताबिक, उसमें जो भोटिव स्तूप है that were also included into the category of this 84,000 of स्तूपास। और भोटिव स्तूप बहुत मिल जाते हैं आपको, नालंदा में जाएं, बोध गया में जाएं, और भी जगहों पे जाएंगे तो बहुत जगह जैसे आपको मिलेंगे ये भोटिव स्तूप जो बनवाए गए हैं। आप देखिए एक प्रोसेशन कैसे अजात शत्रु जो है तो ले जा रहे हैं अपने जिस रेलिक को, जो मिला था उनको, जो हिस्सा पार्ट, जो ये भारत के स्तूप में इसका चित्रण या निरूपण बहुत बखूबी किया गया है। ये पूरा वो दिखाई पड़ता है हमको कला में। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये स्तूप बनाए जाते हैं। उसमें तथागत हैं, और एक जो ज्ञानी पुरुष है अवेकेंड वन वो है, जो और उसके बाद जो किंग ऑफ द किंग दैट इज द चक्रवर्ती राजा, उनके लिए बनाया जाता है। ये पूरी संवाद है आनंद और क्या कहते हैं बुद्ध के बीच में, किन किन लोगों के लिए, हु ऑल आर द वर्दी पीपल फॉर हुम वी शुड कंस्ट्रक्ट द स्तूपा, दैट इज बीइंग टोटली नैरेटेड इनटू दिस वन। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा था वैशाली के स्तूप के बारे में, लिच्छवियों के द्वारा ये बनवाया गया था, जो कि मड का स्तूप है। अभी भी आप अगर जाएंगे वहां पे तो वहां आप देख सकते हैं इसको। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध इस जगह पर आकर के उन्होंने कई बार अपने जीवन काल में इस स्तूप का दर्शन किया था। ये जो है सो प्री मॉरियन पीरियड का जो है सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का रिमेन्स है। ये देखिए उसका अनदर व्यू है उस स्तूप का। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो है सो पिपरवा का ये स्तूप है, आप देख सकते हैं, पिपरवा गोरखपुर के पास में जो है। और वहाँ की जब खुदाई की थी डब्ल्यू.सी. पेपे ने, तो वहाँ की खुदाई में ये आपको रेलिक कास्केट मिला था पिपरवा की खुदाई में। और उस अस्थि मंजूषा जिसको हम कहते हैं रेलिक कास्केट को अंग्रेजी में, ये वहाँ से वो मिला था। और उसमें इस मंजूषा में ये कौन कौन से एंटिक्विटीज थी उसके अंदर रखा हुआ था, ये सारे चीज जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये आपको नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है वो रेलिक कास्केट जो ओरिजिनल है, जो खुदाई में मिला था। नेशनल म्यूजियम में कभी आपको मौका मिले तो आप जा सकते हैं। और ये देखिए लौरिया नंदनगढ़ में जो स्तूपा बनाया गया था, वहां पे जो वुडन का पिलर वहां पे लगाया गया था। यू कैन सी हियर इट वाज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द माउंट एट द लौरिया नंदनगढ़। वहां के स्तूप में जब खुदाई हुई थी वहां बीच में ये मिला था। ठीक है, सो जो लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, इसके डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, जो ओरिजिन के जो उद्भव है इस स्तूप का और वो विकास है, उसके बारे में जो ई सेनार्ट है वो कहते हैं कि स्तूपा इज ए स्टोन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माउंट हट ऑफ द अर्ली फायर वर्शिपर एंड द हर्मिका इमिटेट्स ऑफ एल्टर ऑफ द फायर। ये उनका व्यू है। ई.बी. हैबल, ये आर्ट हिस्टोरियन है, बहुत बड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि स्तूपा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आर्यन चिफ्टन्स हट
Stella Cramris stupa architecture is the resultant of the combination of the Vedic culture and claim of the ancient time. Or S.K. Saraswati, he is of the view that this hemispherical structure emerged out of the earthen funeral mound, that is the Samshan, under which, according to the Vedic rituals, the ashes of the dead were buried. ये इनका व्यू है। इसका जो उद्भव हुआ है स्मशान से हुआ है, और जहां पे कि जैसे राख रखे जाते थे मृत व्यक्तियों के, वो एसी बनर्जी साहब का मानना है कि दिस राउंड फॉर्म ऑफ दिस असुरी बरियल माउंड it has given birth to the round stupa structure. स्मिथ साहब का मानना है कि स्तूपा is derived from the curved roof of the bamboo built over the primitive circular hut shrine. Similarly, M.V. Krishna Rao, he is of the opinion that the crude megalithic structure, the dolmen, it is a type of the megalithic burial, and it has given the concept of this stupa architecture. So it seems that this stupa architecture developed along the time span through the tradition, which can be traced from the proto-historic period to the megalithic period, then to the Vedic period, and later on into the historical period. So this erection of the stupa is a pre-Buddhist tradition, and Brahminical religion also have this concept of a stupa, and this is the Buddhist people, they made stupa as a popular and a sacred structure during their time period. So this pattern of the making memorial burial has a long history from the proto-historic period up to the historical period. So this was all about, you can see here, this is the example of the Sanchi stupa. So this was all about, you can see here, this is the example of the Hindu, this burial, and this is the tradition which never dies. We know that this tradition is still going on. So this is the whole about this concept of origin and the evolution of the stupa architecture in India. So if you have any query, you can ask. And tomorrow I will be talking about the next chapter, the main features of the stupa of the South India. कल उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सनत जी, अगर कोई और कुछ पूछना चाहते हैं कोई स्टूडेंट, तो आप उनको अलाउ कर दें। प्रणाम सर। हाँ बताओ बेटा। सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। सर मेरा प्रश्न ये है कि अब तक कितने स्तूपों की डिस्कवरी हुआ है और कितने स्तूपों की जो है एक्सकवेशन हुआ गया है? ये आपने बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न हमसे पूछ लिया है। हम जो जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फेमस स्तूपा है सांची का स्तूप है, भारत का स्तूपा जो सतना जिले में है, मध्य प्रदेश का, उसका रिमेन्स तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी इसके पार्ट्स थे उसको सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया गया, और जो उसके रिमेन्स हैं वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखे हुए हैं। उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी, वहाँ पे आपको जैसे लाखुंडी हिल है, वहाँ पे कुछ स्तूपा है। और उसके बाद अलावा अगर बिहार में बात करते हैं, केसरिया स्तूप है जिसकी खुदाई हुई है। जो आप बात करें खुदाई की, मैं बात कर रहा हूँ संघोल का स्तूपा है जहाँ पर कि इसकी खुदाई हुई है, जो कि आपको संघोल जो आपको पंजाब में है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे स्तूपा मिले हैं, उसकी खुदाई हुई है। तो और इसके अलावा बहुत सारे स्तूप हैं जो दिखाई पड़ते हैं छोटे बड़े, लेकिन जो बृहद पैमाने में ये यही है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे स्तूपा हैं, चाहे वो भट्टी प्रोलू हो, सन्नति हो, चाहे नागार्जुनीकोंडा हो, अमरावती हो, ये सभी इंपॉर्टेंट स्तूप हैं जहाँ पे कि जिसकी खुदाई हुई है और जिसको डॉक्यूमेंट किया गया है। बहुत सारा काम मैंने कहा कि बहुत बाकी है। रावलपिंडी में भी स्तूपा है, उसके बाद तक्षशिला में भी स्तूपा है, आपने मोहनजोदड़ो का स्तूपा देखा, भीरमौंड में स्तूपा है तक्षशिला में, ठीक है, सिरसुप में भी है। तो अभी जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है। आप में से कोई चाहे तो रिसर्च के रूप में अगर आप आगे आएंगे पढ़ाई के लिए तो उसको ले सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एक जगह पे इस तरह से आपको नहीं मिलेगा और नहीं है। बहुत सा देवनी मोरी का स्तूपा है, सरधरा का स्तूपा है जो मध्य प्रदेश में है, आप सभी जानते हैं, देवनी कोठार है, देव कोठार है, बहुत सारे स्तूपा है, जूनीकुरन का स्तूपा है अगर हम गुजरात में बात करते हैं। तो आपको हर स्टेट वाइज आपको वो ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और उसको एक डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और बहुत सारे काम जो है सो अभी होने हैं इसके लिए और वो करना पड़ेगा।
ये सब आप लोगों के ऊपर में है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसका होना चाहिए, ताकि आने वाली जो अपनी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको एक समग्र रूप में इट कैन बी जस्ट प्रेजेंटेड फॉर देम। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई है? यस सर, दामिनी। और सर जो वैदिक स्तूपा है वो अभी भी आपकी है आवाज मतलब? नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है सर? नहीं आ रही है, आपकी हेलो। आवाज बहुत स्लो है। बोलिए। अभी आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ, बेटर है, बेटर है। बोलिए दामिनी जी। हाँ सर, जो वैदिक स्तूपा है तो जी, वो अभी भी मतलब अच्छे है कि कंडीशन में अच्छे है मतलब? नहीं, वैदिक क्या स्तूपा का मतलब? तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि व्हाट एवर द रेफरेंस वी आर गेटिंग, दे आर बेस्ड ऑन द लिटरेरी एविडेंसेस ओनली। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की तो बात हमने की ही नहीं वैदिक कॉन्सेप्ट में। मैंने कहा कि वैदिक जो चीता है या सीता है, उससे कॉन्सेप्ट लिया गया है जो बुद्धिस्ट स्तूपा को बनाने का, हम ये बात करने की कोशिश कर रहे थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वी डोंट गेट, वी ओनली गेट द सम काइंड ऑफ द फायर अल्टर्स ऑफ द वैदिक पीरियड, या उस समय के कुछ वो भी केवल आपको जो है सो मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में नहीं है, लिटरेचर के रूप में है। क्योंकि वैदिक पीरियड का तो कुछ अभी वेद की डेट को लेकर के ही काफी कंट्रोवर्सी आप जानते हैं सभी लोग, उसको सामंजस्य जो है सो कितना पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो बालकृष्ण गोखले या जो तिलक है, उन्होंने जो डेट कही 1520 डेट कही वेद की, तो उसको लेकर के ही काफी है। अब तो डेट उसकी बहुत पीछे जा रही है, 4000 3000 साल पीछे जा रही है, तो उसको लेके काफी है। तो व्हाट एवर द रेफरेंस वी आर गेटिंग, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लिटरेरी एविडेंसेस ओनली। ठीक है? ओके सर, ओके ओके। और कोई है? सर ये जी गुड स्तूप इवनिंग सर। बनाने का जो पीछे बोलिए भाजपा रीजन जी, क्या था? बताइए, फिर से पूछिए एक बार। सर ये स्तूप बनाने के पीछे जो बौद्धिस्ट और जो ब्राह्मणी काल, इन दोनों के पीछे क्या ऐसे संबंध था जो हम इसको मतलब बौद्ध से मतलब उससे पहले वैदिक से बता रहे हैं? क्या ये बुद्धिस्ट से नहीं कह सकते हैं? तो मैंने तो आपके सामने पूरे एग्जाम्पल दे दिए कि कौन कौन यस से सर। ऐसे एविडेंस है जो आपको जो है सो आपके बुद्ध से, इवन बुद्ध भी एक्सेप्ट कर रहा है कि जब वो कनक मुनि के स्तूप को देखने के लिए जाते हैं निगली हवा में, तो वहां वो खुद खुद कहते हैं, ये सम्राट अशोक, कि जब वहां वो आए हैं तो उन्होंने वहां पे जो वहां स्तूपा था पहले से मौजूद, उसको जो है सो क्या क्या डबल साइज किया है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट पहले से था ना, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम जनरली ये मानते हैं कि स्तूप का संबंध केवल बौद्ध धर्म से है, वो ऐसा नहीं है। इसका संबंध आपके बहुत अतीत से चला आ रहा है, और उसके बारे में मैंने आपको कहा कि जो मेगालिथिक पीरियड है, मेगालिथिक कल्चर है, जो महाश्मशान की संस्कृति है, महापाषाण काल की, उसी से उसका सामंजस्य वहीं से चला आ रहा है। वो बहुत पुराना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की मैंने बात की, और उसमें मैंने आपको कुंडन कुडैकल का जो एग्जाम्पल बताया केरल का, इसके अलावा जैसे टॉपिकल का एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट पहले से, कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म में जो आपके सामने आ रहा है, जब स्तूपा के बारे में अगर आप देखेंगे उसमें जो क्या क्या उसमें अवयव होते हैं स्तूपा के, तो आपने उसमें देखा होगा स्तूपा का, अगर आप अवयव बात करो, मैं हम इसी को ले लेते हैं, एक फोटो कोई ले, कोई अगर मिल जाए तो। ये देखिए कि अगर हम स्तूपा, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको और कल दिखा दूंगा। ये देखिए एक जो ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको डोम कहते हैं, जिसको अंड कहते हैं, उसके ऊपर देखिए बना हुआ है हर्मिका बनी हुई है, उसके ऊपर देखिए छत्र यष्टि बनी हुई है। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये यस जो सर। कॉन्सेप्ट है, ये बाद में लेटर ऑन ऐड हुआ ना। जो तोरण द्वार है वो बाद में बने हैं, वेदिका बाद में बनी है, प्रदक्षिणा किया जा रहा है। मैंने आपको कहा कि जो वैदिक सिद्धि है उसमें प्रदक्षिणा कैसे होती है और इसमें कैसे होती है, बुद्धिस्ट में प्रदक्षिणा के लिए ही बनाया जाता है। वेदिका वाला जो पोर्शन है जिसमें कि रेलिंग चारों तरफ यस से सर। लगाए गए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट पहले से है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बुद्ध के काल में आया ये स्तूपा। इवन बुद्ध कहते हैं कि राजाओं के लिए भी स्तूप बनाने चाहिए, चक्रवर्ती राजाओं के लिए, तथागत है उनके लिए बनने चाहिए, बौद्ध धर्म के जो उपासक हैं उनके लिए भी बनने चाहिए। ठीक है, कहाँ बनने चाहिए ये भी उन्होंने बताया है, कैसे बनने चाहिए ये भी बताया है आपको। और इवन मैंने आपको कहा कि बुद्ध से पहले जो आपको लिच्छवी वाली बात की, हमने लिच्छवी गणराज की बात की,
उन लोगों ने तो पहले वहां पे बनाया है स्तूप को, और जिसको कि बुद्ध कई बार आकर के देखे हैं, जो वैशाली में अभी भी मौजूद है वो। ठीक है ना, जी तो मैं सर। ये बताने जी की सर। कोशिश कर रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक यस है ना, सर। केवल हम इवोल्यूशन बता रहे हैं लिटरेचर के आधार पे, और कुछ आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य हैं, जो कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं, उसके आधार पे हमने आपको ये बताने की कोशिश की। ये जो कॉन्सेप्ट है स्तूपा का, जिसको कि हम लोग जनरली स्तूप बोलते ही आपके दिमाग में आता है कि नहीं ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट और वो ट्रेडिशन देखिए, आपको मैंने लास्ट स्लाइड जो दिखाई, वो ट्रेडिशन आज भी अपनी यहाँ चली आ रही है। गांव के अगर आप होंगे तो आप जानते होंगे कैसे बनाते हैं। ये तो चबूतरे के रूप में है, हम लोग गोल भी बना बिल्कुल देते सर, हैं, बिल्कुल। इसके बीच में जैसे एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं। ठीक है ना, नाम बिल्कुल अलग है, तुलसी के यस नाम सर। अलग है। हम तो अपने यहाँ, मैं बिहार का हूँ तो मैं तो उसको वहां पे सारा बोलते हैं हम लोग। उत्तर बिहार में इसको, मिथिला के रीजन में हम लोग सारा बोलते हैं। अपने बाप दादाओं के लिए अपने खेत में ही बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये जो जी सर। कॉन्सेप्ट जी है, ये जो ट्रेडिशन है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गई है, ये परंपरा खत्म नहीं हुई है, और परंपरा कभी भी खत्म नहीं होती है, उसका केवल एक स्वरूप बदल जाता है। ठीक है ना, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया हुआ है। फिर आपको जो अलग अलग क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, जी वो सर। आपको ध्यान रखना है थोड़े से। स्तूपा पे एक दो क्वेश्चन कभी इक्के दुक्के कभी आ जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग जब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं।